वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं मायाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 थर्ड चैप्टर एंड बेसिक पार्ट्स हम लोगों ने देखा था एंड 1 to 2 क्वेश्चंस भी हमने लास्ट पार्ट में किया था। नाउ अब हम एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको डिग्री में दिया हुआ है एंगल एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज 25 डिग्री। we know since 180 degree equals to pi radian, therefore 1 degree equals to pi upon 180 radian, therefore 25 degree equals to pi upon 180 multiplied by 25 radian. So 5 5s are 5 3s are 15 3 5 6 are, it means 5 pi by 36 radian. This would be your answer. Therefore can I say 25 degree is nothing but 5 pi upon 36 radian. Next bit says minus 47 degree 30 minute, minus 47 degree 30 minute. Okay, my dear students, first of all I am going to convert whole complete into this complete angle into degree, then conversion of degree into radian would be easy. So it would be minus of 47 degree plus 30 minute, can I say? Okay, so minus 47 degree plus 30 minute, 1 minute, since 1 degree equals to 60 minute, therefore 1 minute equals to 1 upon 60 degree, therefore 30 minute equals to 30 upon 60, that is half 1 by 2, that is 1 by 2 degree. So can I say 30 minute is nothing but 1 by 2 degree, minus of 47 multiplied by 2, 94 plus 1, 95 upon 2 degree. Now since 180 degree equals to pi radian, therefore 1 degree equals to pi upon 180 radian. यूनिट मेथड से हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। therefore minus of 95 upon 2 degree is nothing but minus 95 upon 2 multiplied by pi upon 180, this goes in radian. now अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, so ये 5 times 19, 5 times 36, it means minus 19 pi upon 36 multiplied by 2, 72 radian. This is your answer for minus 47 degree 30 minute. Okay, next number 3. Third bit says 240 degree. Since 180 degree equals to pi radian, therefore 1 degree equals to pi upon 180 radian, therefore 240 degree is nothing but 240 multiplied by pi upon 180, 63 ja 64 ja, it means 4 pi upon 3 radian is your answer. Next and fourth one, 520 degree. Since 180 degree is equals to pi radian, therefore 1 degree equals to pi upon 180 radian, therefore 520 degree equals to 520 multiplied by pi upon 180 radian. now 6 0 cancel out, 6 3 जा 6, नहीं 6 से कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 से 9 टाइम्स 2 से 26 2 जा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 26 पाई अपॉन 9 रेडियन फॉर 520 डिग्री देयरफॉर, ठीक है। सो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन सॉल्व्ड। मैंने क्या किया, हर एक क्वेश्चन के लिए 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180
रेडियन। देयरफॉर अगर कोई थीटा या एक्स डिग्री दिया हुआ है तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कोई अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। सपोज हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो डायरेक्ट 90 को पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर दो। 90 2 जा, इट मीन्स व्हाट, पाई अपॉन 2 रेडियन। अगर हम 360 डिग्री की बात करते हैं सो 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 क्या हो जाएगा, रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री। सो 2 जा यानी 2 पाई रेडियन। ही तो बात की बात है कि हम सिंप्लीफाई बाद में करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, बट हमें करना क्या पड़ता है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से उस डिग्री जो एंगल दिया हुआ इन डिग्री उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं, देन यू विल गेट देन इट इनटू रेडियन। ओके, नाउ second question says find the degree measure corresponding to the following radian measures and wherever required use pi equals to 22 upon 7। see my dear student, pi एक irrational number है but इसे approximate value 22 upon 7 हम ले सकते हैं unless it is said, ठीक है। so first bit is 11 upon 16, it is given in radian, see pi radian equals to 180 degree, यहाँ तक तो ठीक है। therefore can I say 1 radian equals to 180 upon pi degree। therefore x रेडियन, अगर कोई रेडियन में दिया हुआ है एंगल, क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाइड कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये कंप्लीट चला देगा डिग्री में, या तो 180 x डिवाइडेड बाय पाई। सो इसका मतलब है कि अगर x रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई से क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। सो अब जो क्वेश्चन होगा इतना डिटेल में हम नहीं चलेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाइड करके उसे कन्वर्ट कर लेंगे इनटू डिग्री। देन पुट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज नथिंग बट 22 अपॉन 7 एंड सिंप्लीफाई इट। जितना भी जाएगा डिग्री में, अगर फर्दर आप रेशनलाइज करेंगे तो डिग्री, मिनट और सेकंड तक आप अप्रोच कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग अप्रोच करते हैं, देखिए सो इसको हम लिख सकते हैं कि 11 अपॉन 16 रेडियन इज नथिंग बट 11 अपॉन 16, इसे 180 डिवाइडेड बाय पाई से क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर देंगे सो दैट इट वुड गो इनटू डिग्री। नाउ 11 अपॉन 16 180 हमें बोला गया पाई का यूज करने के लिए 22 अपॉन 7, सो 22 डिनोमिनेटर पार्ट में एंड 7 वुड गो इन न्यूमरेटर पार्ट। सो 11 2 जा 22, 2 से 90 टाइम्स, 2 से 45, 2 से 8, ठीक है। सो अब कैंसिल, अब ज़्यादा रेशनलाइज नहीं होगा, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 7, 45 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 8, इसका मतलब 90 अपॉन 2 है। इसको लिख सकते हैं 90 अपॉन 2, 45 को मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 8, सो 9 7 जा 630 डिवाइडेड बाय 16, 8 2 जा 16, ये कंप्लीट है डिग्री में। अब इसे फर्दर डिग्री से क्या करेंगे, डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से 630, ठीक है। 16 4 जा 64 होता है, 16 3 जा कितना आएगा 48 आएगा, 5 और यहाँ 5 1, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा, 9 जा 144, 6 रिमाइंडर, इसका मतलब है कि 39 कंप्लीट डिग्री आया, 39 डिग्री एंड 6 अपॉन 16, 39 6 अपॉन 16 डिग्री, यानी कह सकते हैं कि 39 डिग्री प्लस 6 अपॉन 16 डिग्री। नाउ ये जो 6 अपॉन 16 है, इस डिग्री को फर्दर हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 6 अपॉन 16 क्या हो जाएगा, 60 हम मल्टीप्लाइड कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 39 डिग्री एंड प्लस 6 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये मिनट में चला गया, ठीक है। सो 4 जा 15, 2 3 टाइम्स, इसका मतलब 39 डिग्री एंड 15 3 जा 45 अपॉन 2 मिनट। ओके, नाउ कैन आई रेशनलाइज इट, ओके 39 डिग्री 22 एंड 1 अपॉन 2 मिनट, इसका मतलब है कि 39 डिग्री एंड 22 मिनट प्लस हाफ मिनट, इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 22 एंड हाफ मिनट को लिख सकते हैं 22 मिनट प्लस हाफ मिनट, ठीक है।
ये तो बेसिक पार्ट है, इसे हम ज़्यादा जो है ना इलेबोरेट इन दिस मैनर नहीं करेंगे। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कॉल करेंगे तो हम जो है ना उसे फिर से इलेबोरेट कर देंगे। इट्स माई ड्यूटी। कैन आई से 39 डिग्री 22 मिनट प्लस हाफ मिनट इज नथिंग बट हाफ इंटू 60 कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड वुड बी योर आंसर। देयरफॉर 11/16 रेडियन इज नथिंग बट 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड बिट। Second bit says -4 radian, -4 radian. So -4 radian is nothing but -4 multiplied by 180 upon pi degree. -4 into 180 upon pi is nothing but 22 upon 7. So 22, 7 would go in numerator part degree. I'm simplifying 2 11 जा 2 2 जा, ठीक है, okay. Now so minus of 7 2 जा 14 multiplied by 180 divided by 11 degree. Now minus of 18 into 14, 18 14, ठीक है, 18 14 कितना आ जाएगा, 252, ठीक है, 252 एंड 10 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। नाउ 11 से डिवाइड हम करेंगे, 11 से डिवाइड हम कर दें, 11 2 जा 22, 3 2 11 2 जा 22 10 and 10 11 9 जा 99 1. It means minus of 229 and 1 upon 11 degree means minus of 229 degree plus 1 upon 11 degree. Now 1 upon 11 degree, 1 degree is equals to 60 minute. So multiplied कर देंगे minus of 229 degree and 1 upon 11 into 60 minute, ठीक है, plus minus of 229 डिग्री 60 अपॉन 11 मिनट, ठीक है। 11 से डिवाइड कर दिया 60 में, कितना आ जाएगा, 5 जा 55, 5 रिमाइंडर। सो कैन आई से माइनस ऑफ 229 डिग्री एंड 11 5 जा 5 अपॉन 11 मिनट माइनस ऑफ 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 5 अपॉन 11 मिनट। कैन आई राइट हियर? ओके, नाउ minus of 229 degree 5 minute 5 upon 11 minute, 1 minute equals to 60 second. So 5 upon 11 multiplied by 60 second. Now 60 5s are 30. So minus of 229 degree 5 minute 300 upon 11 second. Now 11 300 11 2 जा 22 8 11 7 जा 77 3 अप्रॉक्सीमेटली 27 28 राउंड जाएगा, कह सकते हैं। माइनस ऑफ 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे, यू हैव टू राइट अप्रॉक्स। क्यों? क्योंकि कंप्लीट या डिविजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट third bit. Third, it says 5 pi upon 3. 5 pi upon 3. So 5 pi upon 3 radian is nothing but 5 pi upon 3 multiplied by 180 divided by pi degree. pi से pi cancel out हो गया, 360. It means कितना, 300 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री। Next 7 pi upon 6. This is your answer. 7 pi upon 6. It is given in radian, so you have to convert into degree by multiplying 180 divided by pi. 7 pi upon 6 multiplied by 180 divided by pi. This goes into degree. Pi cancel out, 6 3 जा
30 means 210 degree. 7 multiplied by 30 degree means 210 degree. This is your answer. So in this way question number 2 has been solved. Question 3 says a wheel makes 360 revolution in 1 minute. 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? 360 revolution in 1 minute. See, a wheel revolve कर रहा है, ठीक है, व्हील है ये रिवॉल्व कर रहा है, इन दिस मैनर रिवॉल्व कर रहा है. 360 रिवॉल्यूशन, अगर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन सपोज करते हैं कि ए पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और ये आपका जब व्हील है, पहिया है, जब घूमेगा तो मान लेते हैं कि यह पॉइंट बी है, सॉरी यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है, यह पॉइंट डी है. जब यह पॉइंट कंप्लीट वन रोटेशन करेगा, कंप्लीट वन रोटेशन करेगा, डिफरेंट केस ले लेते हैं. तो ए पॉइंट बी पर जाएगा और यह बी सी पर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी ये जो बी है वह शिफ्ट सी पर चला जाएगा, ए बी पर गया, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है. यही पोजीशन थर्ड केस में ए यहाँ चला जाएगा, फोर्थ केस में ए यहाँ पर शिफ्ट होगा, और फिफ्थ केस में अगेन ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा. तो देखिए अगर वन कंप्लीट रोटेशन कर रिवॉल्यूशन करे तो वह कितना कवर करेगा, 360 डिग्री, ठीक है. वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए वन रिवॉल्यूशन मीन्स 360 डिग्री, ठीक है. वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, 360 रिवॉल्यूशन किया है, ठीक है. अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट. सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 minute equals to 360. Okay, now 1 minute means what, 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड. सो अगर 1 सेकेंड की बात करें क्वेश्चन में, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. तो अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट है, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना होगा, 1 सेकेंड 60 से हम क्या करेंगे, डिवाइड हम कर देंगे. 360 डिवाइडेड बाय 60 मीन्स 6. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए अगर 1 रिवॉल्यूशन करते हैं, अगर यह 1 रिवॉल्यूशन करता है तो 360 डिग्री है, ठीक है, 360 डिग्री है. 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री है, ठीक है. अब देखिए 360 का मतलब कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर 6 है तो 6 रिवॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, देयरफॉर सिंस यहाँ पर लिखेंगे 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, देयरफॉर 6 रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना, 6, ये 6 कैरिड आउट इन 6 सेकेंड. सो 6 रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6 रेडियन, दैट इज 12 पाई रेडियन. यह 12 पाई रेडियन कितना सेकेंड में कन्वर्ट किया है, 1 सेकेंड में कंप्लीट किया है. देयरफॉर कह सकते हैं कि इट विल टर्न 12 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड. 12 पाई रेडियन हुआ, ठीक है. 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कितना, 360. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में कितना होगा, 60 सेकेंड में या 360 रिवॉल्यूशन. तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 6 रिवॉल्यूशन. यह 6 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड है. तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 6 रिवॉल्यूशन के लिए कितना आप रेडियन कवर करेगा. सो 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन, यह 12 पाई रेडियन इज कैरिड आउट इन
1 second. This is your answer. So how many radian it does cover? It cover in 1 second. So 12 pi radian would be the angle subtended in 1 second. Clear है? Okay. Find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of radius है 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. Radius is given. Radius R is 100 centimeter, 100 centimeter, and arc length L equals to 22 centimeter. Find the degree measure. Angle subtended by center of radius है 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter, and we have to use pi equals to 22 upon 7 since it is given. Now angle subtended you have to convert into degree. So we know theta equals to L upon R. हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में देखा था, बट यह जिसमें रहेगा यूनिट और यह भी यूनिट है, तो बट ये रहेगा रेडियन में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो ये 22 क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा 22 अपॉन 100. देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 22 अपॉन 100 रेडियन. बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए. सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री. देयरफॉर अभी देखे थे, देयरफॉर 22 अपॉन 100 रेडियन is nothing but 180 divided by pi multiplied by 22 upon 100 degree. Pi, can I convert 180 into 22 divided by 22 multiplied divided by 7 है, तो 7 would go in न्यूमरेटर पार्ट, और ये 100 है ही. ये पाई की वैल्यू रखे क्योंकि पाई का वैल्यू बोल रहा है रखने के लिए. 22 कैंसल आउट, 10 10 2 5 जा 2 9 जा 9 7 जा 63 अपॉन पाई 63 अपॉन 5 डिग्री आ गया. 65 अपॉन 3, इसका मतलब है 12 एंड 3 अपॉन 5 डिग्री मीन्स 12 डिग्री प्लस 3 अपॉन 5 डिग्री. 12 डिग्री 3 अपॉन 5 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. देयरफॉर 3 अपॉन 5 डिग्री इज नथिंग बट 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 60. 12 जा 36 मिनट, सॉरी मिनट. सो 36 मिनट is your answer. So angle subtended at the center in degree is 12 degree 36 minute. ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन says in a circle of diameter 40 centimeter the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. Length of the minor arc. ठीक है, अब देखिए 40 सेंटीमीटर आपका डाया है, तो दिस इज सर्कल, ये आपका रेडियस है. अगर हमारे पास डायामीटर 40 सेंटीमीटर है देन रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ इट्स डायामीटर, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, 20 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड है आपका 20 सेंटीमीटर. सपोज दिस इज व्हाट कॉर्ड, PQ आपका कॉर्ड है, PQ क्या है हमारा कॉर्ड है. ठीक है, कॉर्ड है, तो यह कॉर्ड की वैल्यू दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यह लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर. इफ़ यू ज्वाइन विद द सेंटर दिस एक्सट्रीम 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा आपका एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस कॉर्ड. ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर, ये आपका 20 है, ये आपका 20 है, ये आपका 20 है. देखिए क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि ये कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, सपोज करते हैं O है. अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए. कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो ये तो हमारा सर्कल हो गया जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर. ठीक, अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हुए एक कॉर्ड आप ड्रॉ कर लें तो वही कॉर्ड क्या कहलाता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज ये डायामीटर कहलाएगा. ठीक है, मान लेते हैं कि A है और ये B है, सपोज AB.
ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये आपका कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क का मतलब क्या है कि इस यहां से लेकर के यह वाला पार्ट कहलाता है माइनर आर्क। सपोज करते हैं कि ये हमारा आर है, सो पी आर क्यू आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पी आर क्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नाउ देखिए, सो यानी एल की वैल्यू, तो यह आपका आर्क हो गया एल पी आर क्यू, और यह सेंटर है हमारा ओ, और पी क्यू से अब कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो ये लेंथ और रेडियस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो यह आपके पास थीटा की वैल्यू एंगल 60 डिग्री यहाँ से बाय कंस्ट्रक्शन से थीटा, ये हमारा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। बट एल अपॉन आर का यूज अगर करेंगे तो ये किस में रहना चाहिए, रेडियन में आपको रहना चाहिए। कह सकते हैं कि 60 और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड, तो ये चला जाएगा रेडियन। सो 63 जा, इट मीन्स पाई अपॉन 3 रेडियन। देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गया पाई अपॉन 3। वी नो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, और थीटा हमें क्या फाइंड करना, एल। देयरफॉर एल इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर। थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये किस में रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए। जब ये रेडियन में रहेगा तो आर जो यूनिट जिस यूनिट में रहेगा उसी यूनिट में आपका लेंथ भी होगा, एल भी होगा, लेंथ ऑफ द आर्क। सो ये हमारा पाई बाय 3 है मल्टीप्लाइड बाय आर वैल्यू। रेडियस वी हैव गॉट 20 सेंटीमीटर, 20 ये सेंटीमीटर में है। सो ओवरऑल एल की वैल्यू जो निकलेगा वह भी क्या होगा, इन सेंटीमीटर में होगा। सो 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर एल की वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो पाई की वैल्यू 22/7 लेकर के फिर आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ 6th वन क्वेश्चन समझ में लगा। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। ये आपका डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर, और तो जैसे ही आपका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इसमें रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड जो है आपका पी क्यू, इसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को जब ज्वाइन कर सेंटर से तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ईच एंड एवरी एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाए। 60 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 3 रेडियन आ गया। अब आपके पास पूछा जा रहा है कि आर्क ऑफ लेंथ, मीन्स ये कर्व्ड पोर्शन को पूछा जा रहा है। तो इसको अगर हम कट पोर्शन करके ओ पी आर क्यू इतना पोर्शन को हम कट कर लिए, तो आई वी नो यहाँ से फॉर्मूला से कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला का तब हम यूज कर सकते हैं जब ये थीटा किस में रहे, रेडियन में रहे। तो ये रेडियन में हम निकाल चुके हैं, रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है और एल की वैल्यू पूछ रहा था, यही एल की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने यहाँ से निकाल लिया है। एनी डाउट? नो। ओके, नाउ 6th वन क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन सेज इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, 2 सर्कल्स हैं, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट इट सेंटर, फाइंड द रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। देखिए, अगर एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, सॉरी दूसरा सर्कल आपका ये है, ठीक है, दोनों का सेंटर यहाँ है, सपोज करते हैं O1 और ये सेंटर है O2। नाउ इसका रेडियस मान लेते हैं R1 है, इसका रेडियस मान लेते हैं R2 है। लेंथ ऑफ आर्क, सपोज ये 60 डिग्री एंगल सबटेंडेड हो रहा है, यहाँ पर ये 60 डिग्री है और ये कितना है 75 डिग्री है। ए बी पी क्यू, ये आपका लेंथ जो है वह L1 मान लेते हैं और ये जो आपका लेंथ ऑफ आर्क है वह L2 मान लेते हैं। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन L1 इक्वल्स टू L2, ये आपका वैल्यू सेम है, लेट सपोज L से, ठीक है। ये आपका θ1 ले लीजिए और ये आपका θ2 ले लीजिए। बट θ1 θ2 अगर हम थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का यूटिलाइज करें, सो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो θ1 फॉर फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 60 और पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे
मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये रेडियन में 63 जा, इसका मतलब π/3 क्या हो गया रेडियन। θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री है, सो π/180 से हम मल्टीप्लाइड कर दिए, सो ये आपका रेडियन में चला गया। 5 15 जा 5 36, ठीक है। सो 3 12 3 5 जा, इट मीन्स 5 π/12 रेडियन। ओके, R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। लेट सपोज R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, R2 इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो हम यूटिलाइज करें, वी नो थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R, देयरफॉर θ1 अपॉन θ2 मीन्स L1 अपॉन R1 होल डिवाइडेड बाय L2 अपॉन R2 हम बोल सकते हैं। सो θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन R1, ये आपका जो है ना इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स होगा तो R2 न्यूमरेटर पार्ट और L2 डिनोमिनेटर पार्ट। अब देखिए L1 L2 दोनों इक्वल है, L1 L2 दोनों के बदले में यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। L1 L2 दोनों बराबर तो क्या कैंसल आउट हो गया, यानी कह सकते हैं कि θ1 अपॉन θ2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 और θ1 इज नथिंग बट हाउ मच π/3 डिवाइडेड बाय θ2 5 π/12 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 और π/3 ये 12 गो जी न्यूमरेटर एंड 5 पाई इन डिनोमिनेटर, R2 अपॉन R1 पाई कैंसल आउट 3 4 जा, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। हमसे पूछा जा रहा था R1 अपॉन R2, सो अगर इन्वर्स ले लो दोनों का सो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 5/4, देयरफॉर R1 इज टू R2 जो रेशियो होगा वह 5:4, यही आपका आंसर हो गया 5:4। क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस वुड बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज 3.1. Question says find the angle in radian through which the pendulum swing of its length of 75 centimeter and the tip described an arc of length. 3 different lengths are given. सबसे पहले पेंडुलम की बात करते हैं तो you might have done your experiment at your college level. ये आपका पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, दिस इज व्हाट बॉब है, और ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और इसे हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं 5 to 6 डिग्री, तो ये इस तरह से रेसिप्रोकेट होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्विंग हो रहा है, लटक रहा है, झूल रहा है, तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ ऑफ 75 सेंटीमीटर। ये जो पेंडुलम है इसका लेंथ है, इसका मतलब है कि ये आपका 75 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। तो जब ये इस तरह से स्विंग करेगा तो कभी, और ये पूरा का पूरा इस तरह से अगर आपका देखें कि इसे आप कंप्लीट इमेजिन करें तो ये सर्कल को डिस्क्राइब करेगा और ये आपका फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा, तो ये आपका रेडियस की तरह बिहेव करेगा 75। इसका मतलब है रेडियस आपका पास दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। नाउ तो अगर 10 सेंटीमीटर डिस्क्राइब कर रहा है इसके टिप लेंथ ऑफ आर्क, अगर सपोज करते हैं ये पॉइंट O है, दिस इज पॉइंट A, ठीक है, दिस इज पॉइंट A, और यह बॉब को जब जैसे आप टिल्ट करेंगे या तो इसको हम इनिशियल एक्साइटमेंट देंगे तो ये जो है ना कहीं इस जगह पर जो कंप्लीट यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट A शिफ्टेड टू पॉइंट B, यानी बॉब का पोजीशन यहाँ से चेंज होकर के यहाँ कहीं पर जा सकता है इस तरह से, ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो ये आपका पार्ट B आ गया, ठीक है। सो AB आपका क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। AB क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो इन डिफरेंट 3 केसेस दिया हुआ है यहाँ पर कि L की वैल्यू दिया हुआ है फॉर फर्स्ट केस, और R तो हमारा फिक्स रहेगा, ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, पेंडुलम की लेंथ यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है फॉर दिस सिंपल पेंडुलम एक्शन, तो ये आपका रेडियस फिक्स है। फॉर L इज इक्वल टू, अगर ए पोजीशन शिफ्टेड, ए पोजीशन या बॉब की पोजीशन A to B चला गया तो यहाँ पर कुछ एंगल सबटेंड करेगा, लेट अस से थीटा, यही थीटा की डिफरेंट वैल्यू पूछ रहा है जब लेंथ हमारा 10 हो जाए, लेंथ 15 हो जाए, 21 हो जाए।
सो ए बी इज इक्वस टू एल इक्वस टू 10 सेंटीमीटर, देयर फोर थीटा इक्वस टू एल अपॉन आर। एल की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू 75। ये थीटा किस में जाएगा? रेडियन में। बट आपसे पूछा जा रहा है एंगल, फाइंड द एंगल इन रेडियन। क्लियर? से 5 2 जा 5 15 जा 2/15 रेडियन। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड बिट, अगर ये आपका लेंथ ऑफ आर्क हमारा 15 सेंटीमीटर, यानी ये आप 10 नहीं रह करके 15, यानी और भी अधिक जो है ना आगे बढ़ जाए, इस तरह से जो है चला जाएगा सी पोजीशन पे, तो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऑफ कोर्स हो जाएगी। सपोज करते हैं ये थीटा 1 आ गया, ये L1 है L1, ठीक है। अब आ गया AC यानी L2, इसकी वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर थीटा 2 वुड बी द एंगल सबटेंडेड। पहले थीटा 1 था, थीटा 2 इज नथिंग बट L2 अपॉन R। L2 की वैल्यू 15, R की वैल्यू 75। 15 1 जा 15 5 जा, यानी 1/5 क्या आएगा? रेडियन यूनिट। नाउ थर्ड केस, when the length of arc is 21 सेंटीमीटर। once again अगर बॉब की पोजीशन शिफ्टेड, अगर ए से हम जो है ना और अधिक आ जाए, सपोज करते हैं डी पोजीशन, तो एंगल सबटेंडेड क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक थीटा 3। सो ए डी इज नथिंग बट L3 21 सेंटीमीटर, देयरफॉर थीटा 3 इज नथिंग बट L3 अपॉन R 21 अपॉन 75। 3 7 जा 325 means 7 upon 25 unit would be radian. So my dear students, in this way I have completed this exercise 3.21 and I think you have enjoyed more. 3 things I am urging you, like, share and subscribe। लाइक करें, मोटिवेशन मिलेगी। शेयर करने से नॉलेज की शेयरिंग होगी। जिस तरह से मैं आप तक पहुंच रहा हूं, उसी तरह से आप अपने दोस्तों के बीच में इस नॉलेज का शेयरिंग कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए नए वीडियो जो अपलोड मैं करता हूं आप तक इजी वे में पहुंच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।